سونیا عاشر کو، ایونجلسٹ سونیا عاشر کو خدا کے کلام کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ جی سسٹر جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو، آئیں اور خدا کا کلام ہمارے درمیان شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر سہیل، خداوند آپ کو بڑی ہی برکت دے، اور تھینک یو سو مچ سسٹر صبا، آپ نے خوبصورت پرے کی میرے لیے، مجھے بہت برکت ملی، اور خداوند کی حضوری، خداوند کا مسا ہمارے درمیان کثرت سے موجود ہے، اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آئے عزیزو، ہم خداوند کے مقدس کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آج جو میں آپ کے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے غلطیوں کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت میں سے میں آپ کے ساتھ آج کلام کو بیان کروں گی۔ اور جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے جھگڑا۔ آج ہم سیکھیں گے جھگڑے کے بارے میں، کہ کس طرح جھگڑا جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور یہ جھگڑا جو ہے جس کی زندگی میں ہے، وہ شخص خداوند کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسے ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ جھگڑ لیا صلح کر لی، جھگڑ لیا صلح کر لی، لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جو جھگڑا کرتا ہے، یا جو جن کی زندگیوں میں یہ جھگڑا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے غلطیوں کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 5 ورس 19۔ اس میں لکھا ہے، اگر ہم اس ورس کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس 16 میں دیکھیں، تو اس میں ہمیں ایک بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے، جس میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہمیں برکت دے۔ عزیزو، اس بات کو ہم پہلے سیکھیں گے کہ جو جسم ہے وہ روح کے خلاف کام کرتا ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کے خلاف۔ تو اب ہم دیکھیں گے ورس نمبر 19 میں، جس میں ہمیں جھگڑے کے بارے میں ملتا ہے، اس میں جسم کے کاموں کے بارے میں ذکر ہے۔ اگر ہم ورس 19 سے پڑھے تو اس میں ہمیں جو جسم کے کام ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا۔ میں جس پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے جھگڑا۔ آگے لکھا ہے، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جن زندگیوں میں یہ جسم کے کام ہے جو نظر آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس بات کی امید نہیں رکھنی کہ اگر ہماری زندگیوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں۔ صاف صاف خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جسم کے کام جو شخص کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کا ہرگز وارث نہیں ہوگا۔ سو عزیزو، یہ جو جتنے بھی کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں نے پڑھا ہے ورس 19 سے 20 تک، 19 سے 20 آیت میں ہم نے جسم کے کام دیکھے ہیں، اور یہ کام جو ہے یہ ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں، یہ گروپس میں کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اور کچھ سیلز ہوتے ہیں جب ہمارے جسم میں کوئی بیماری آتی ہے تو جو ہمارے اسٹرانگ سیلز ہیں جو بیماری سے فائٹ کرتے ہیں، وہ اگر وہ اسٹرانگ ہوں گے تو وہ جو سیلز جو ہمارے اندر جسم میں بیماریوں کو لے کر آتے ہیں، وہ اس سے فائٹ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح عزیزو، اگر ہمارے اندر خداوند کا روح ہوگا، خداوند کے روح کے پھل ہوں گے، تو عزیزو جو ہمارے جسم کے کام ہے یہ ان سے فائٹ کریں گے، اور یہ جو اس پر ہم غالب آ جائیں گے۔ جو جسم کے کاموں پر ہم غالب آ جائیں گے اگر ہمارے اندر روح کا پھل ہوگا،
हम सब जानते हैं, हमने बहुत ही खूबसूरती से पिछले दिनों में एक एक फल के ऊपर बात की थी, हमने सीखा था। और अगर हमारे अंदर रूह के फल होंगे तो हम जिस्म के जो काम है उन पर गालिब आ सकते हैं, इनको फिनिश कर सकते हैं अपनी जिंदगियों में। अगर हमारे अंदर ये फल जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमें रूहानी तौर पर हम बीमार हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ये सेल्स जो है ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम जिस्मानी कामों पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। सो बाद में करना चाहती हूँ एक सेल के ऊपर, कह सकती हूँ कि झगड़े के ऊपर। ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स में काम करते हैं। अगर झगड़ा है उसके साथ और भी ये हमारी जिंदगियों में साथ साथ गुनाह होंगे। झगड़े से हसद, हसद से गुस्सा, गुस्से से तफरके, तो ये एक साथ हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। तो हम देखेंगे झगड़े के बारे में आज हम बात करेंगे। झगड़ा जिसे हम कहते हैं फसाद की जड़, जिसे हम कहते हैं बहस, जिसे हम कहते हैं तकरार। तो हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं झगड़े के बारे में हम सीखने को है। मिसाल अगर उसका हम 15 बाब और उसकी 14 आयत में हम एक खूबसूरत सीखने वाली बात पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, झगड़े का शुरू पानी के फूंट निकलने की मानीत है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। हालेलुया। कितनी ही खूबसूरत बात है कि झगड़ा जो है वो एक छोटी सी बात नहीं है। इससे घरों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। अजीजों, हम समझते हैं कि झगड़ा एक मामूली सी बात है, ये जो है ये घरों को बर्बाद करने की जड़ है। जो लिखा है झगड़े का शुरू पानी के फूंट निकलने की मानीत है। आपने कभी देखा होगा वीडियोस में या अपनी आंखों से भी देखा होगा ये मंजर कि जब एक बहुत बड़ा जो नदी है या दरिया है वो उसका बंद जो है वो टूट जाता है तो किस तरह पानी जो एकदम से फूट जाता है और वो शहरों के शहर जो है वो तबाह कर देता है। घर डूब जाते हैं, लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। जब क्या होता है, पानी फूट निकलता है। पानी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। पानी घरों को घिरा देता है, दरख्तों को उखाड़ देता है। पानी के अंदर बहुत कुव्वत पाई जाती है। मैंने अक्सर छोटी छोटी क्लिप्स आप देखते होंगे, आपकी आंखों के सामने से गुजरते थे, किस तरह सुनामी आती है और उससे घरों के घर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। मैं और आशिर एक दफा हम हॉलीडेज पे गए थे और हमने बीच पर गए और हमने वहां पर बड़े बड़े बहुत बड़े पहाड़ देखे। और जब पानी का बहाव उन पत्थरों से टकराता था और उसके अंदर हमने बहुत बहुत बड़े बड़े जो दरार देखी थी। क्यों थी? वो पानी की बहाव से, इतनी तेजी से जो पानी का बहाव आता था और उन पहाड़ों को चीर देता था। इसलिए इसमें ये बात लिखी है, झगड़े का शुरू जो है पानी के फूंट निकलने की मानीत है। अजीजों, जब झगड़ा होता है तो घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों के अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसलिए लिखा है कि झगड़ा जो है वो पानी के फूंट निकलने की मानीत है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जिस तरह मैंने बताया ये ग्रुप्स में काम करता है। ये जो मैंने अभी आपको गलतियों की किताब में जो भी जिस्म के काम बताए, ये ग्रुप्स में काम करते हैं। देखिए, पहले झगड़ा शुरू होता है, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए लिखा है कि झगड़े को शुरू होने से पहले ही हमें खत्म कर देना, इससे पहले लड़ाई हो। जिस तरह हम अक्सर बैठे होते हैं ग्रुप्स में और छोटी सी बात से एक बात निकलती है, उससे झगड़ा, छोटी सी बात से बात निकलते निकलते वो झगड़े तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि फिर वो बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई पैदा हो जाती है। लोग देखते हाथापाई शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे देखा होता है कि फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हैं लड़के और आपस में हंसी मजाक में एक छोटी सी बात निकलती है, उससे झगड़ा होता है, झगड़े से लड़ाई कि वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते, इवन के कत्लो गारत हो जाता है। इसलिए आपको अगर लगे ये बात जो हम कर रहे हैं इससे झगड़ा पैदा हो रहा है, ये बात बिगड़ रही है, तो उस बात को खत्म कर दे इससे पहले के लड़ाई शुरू हो जाए।
तो हमें क्या करना है, झगड़े को खत्म करने की कोशिश करनी है, इससे पहले कि घर खराब हो जाए, रिश्तेदारियां खराब हो जाए, दोस्तियां खराब हो जाए, आपके रिलेशंस खराब हो जाए। उस झगड़े को खत्म कर दे। हालेलुया। बात अब हम दूसरी सीखेंगे कि झगड़ा जो है वो जब हम आपस में, हमारा एक नाम होता है, जैसे कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें अच्छे नाम से जानते हैं, और जब कभी हम आपस में बैठे होते हैं तो ऐसा होता है कि झगड़ा एक बात से झगड़ा निकलता है, और उसमें से हम फिर हमारा जो घर में रवैया होता है, जो हमारा बाहर हम बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन जो घर में हमारा रवैया सम टाइम होता है कि हम अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं हम बड़ी रिस्पेक्ट से इज्जत देते हैं दूसरों को, कि लोग हमें देखें, जाने कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अजीजों, जब झगड़े की बात होती है और झगड़ा जब होता है तो उससे हमारा जो बोल चाल है, हमारे बोलने का अंदाज बदल जाता है, हमारा एक तरीका, हमारे आवाज का साउंड बदल जाता है एकदम से। तो उससे जो सामने वाला बंदा है, जिसके सामने जो शख्स आपकी बहुत इज्जत करता है, वो आपको बोलेगा कि ये इंसान जो है वो अपनी जुबान से जाना जाता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। तो इसलिए हम एक और आयत देखेंगे, इंसाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है। हालेलुया। अगर आप देख रहे हो कि झगड़ा हो रहा है और आप उससे अलग हो जाएं, आप उसमें शामिल ना हो कि वो लड़ रहे हैं हम और उसमें बातें डाल के, नहीं नहीं इसने तो वैसे कहा था, ये तो वैसे था, ये ऐसे है, तो उसमें आप शामिल होने की बजाय आप अलग हो जाएं। क्यों? इससे आपकी इज्जत बनी रहेगी। लिखा है झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। जो लोग अहमक है, जो लोग कलाम से खाली हैं, जो लोग गुनाह में हैं, जो लोगों को कलाम की समझ नहीं है, वो अहमक हैं, वो बुरे इंसान हैं। वो क्या करते हैं? वो झगड़ा करते रहते हैं, वो तो बहाने ढूंढते हैं कि किस तरह फैमिलीज में झगड़े हो। अगर आप देखते किसी फैमिली बहुत मोहब्बत से रह रही, बड़ी सुलह से रह रही, आप कोई ऐसी बात जाकर वहां पर कर देते हो और उस बात से उस घर में लड़ाई पैदा हो जाती है और वो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए लिखा है झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है। आप अगर चाहते हैं आपकी इज्जत हो तो आप ऐसी बातों से, ऐसे कामों से दूर रहें। जो इज्जत आपने बाहर बनाई है अजीजों, वही इज्जत आपकी घर में भी होनी चाहिए। बाहर आप बहुत अच्छे बनते हैं, हम बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब फैमिलीज में बात होती है तो हम अपना आप दिखाते हैं, हम तो वैसे हैं वैसे हैं। इसलिए जो बाहर है वही घर में भी होना चाहिए आपको। हालेलुया। तो इज्जत किस में है? कि हम झगड़े से दूर रहें। झगड़ा हो रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करें, ना कि और बातें उसमें और 3-4 डाल के, और झगड़ा जो एक आग की, कहते तिनके की मानी है। आपने अक्सर माचिस की तीली को एक तीली के साथ दूसरी तीली जलाएं तो वो सारी जो उसकी जल जाती है, उसकी सारी तीलियां। तो अजीजों, झगड़ा भी ऐसे है, जब आप एक बात शुरू करते हैं उससे दूसरी निकलती है, दूसरी से तीसरी, चौथी, ऐसे ऐसे पूरा माहौल खराब हो जाता है घर का। इसलिए आप जहां पर आपको लग रहा है झगड़ा हो रहा है, आप चाहते हो इज्जत बनी रहे, तो झगड़े को खत्म कर दे और झगड़े से अलग रहे। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमने देखा यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि झगड़े को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। खुदा के कलाम में हर चीज का हमें हल भी मिला है। हालेलुया। हम इस चीज का हल देखते हैं कि हम इस झगड़े को, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम झगड़े को खत्म कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हम सबसे पहले खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है मिसाल उसका 25 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है झगड़े को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। लिखा है झगड़ा करने में जल्दी ना कर। पहली बात, झगड़ा करने में हमें जल्दी नहीं करनी। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको
کسی کے آپ کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی ہے تو آپ ایک دم سے آگ بگولا ہو گئے, آپ کو غصہ آ گیا اور آپ اس سے لڑنا چلے گئے, آپ نے فون اٹھایا, ہاں جی تسی میرے بارے چ گل کہی ہے تے کئی کیوں, ایک دم سے ہم جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ایون کہ پوری بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا اس شخص نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے, جب وہ شخص آپ کو بتا رہا ہے تو یہ انسان کی نیچر ہے. اچھا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے, میں بھی تمہیں اس کی باتیں بتاتی ہوں, میں بھی تمہیں اس کی باتیں بتاتا ہوں. وہ تو خود ایسا ہے, وہ تو خود ایسی ہے, وہ تو خود ویسا ہے, وہ تو بڑا اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھتا ہے. ایسی باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خداوند کے لوگوں کا کام نہیں ہے. اگر جھگڑا جو ہے وہ اس میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی. اگر کسی نے ایسی کوئی بات آپ کے خلاف کر دی ہے, آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بات کسی نے کی ہے, کیوں کی ہے, اور اس کا حل کیا ہے, اس کو میں کس طرح اچھے سے سولو کر سکتی ہوں, بجائے کہ ہم ایک دم سے غصے میں آ جائیں اور جلد بازی کریں کہ ہم اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھائیں. اس لیے ہمیں لکھا ہے کہ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر, آخر کار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا. ہاللیلویا. دیکھیں جب آپ کو پوری بات کا نہیں پتا تو آپ جھگڑا کر رہے ہو, بعد میں آپ کا ہمسایہ جسے آپ کو آپ کی ساری ہسٹری کا پتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو وہ آپ کو ذلیل کر دے. آ کر فیملیز میں بیٹھے ہو آپ, یا رشتہ داروں میں بیٹھے ہو, یا کہیں بھی ہو, تو آپ کو آپ کی ساری ہسٹری کھول دے, بھئی تم نے میرے بارے میں یہ بات کی, تم جلد بازی میں اٹھے, فون اٹھایا اسے, یا ان کے گھر چلے گئے. ایک دم سے ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ایسے, جب میں تھی تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بات کا پورا پتہ نہیں, آپ نیبرز کے گھر میں جاتے ہو, اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو اور لڑائی تک پہنچ جاتے ہو, تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ بات تو ایسے نہیں تھی, ویسے تھی. ہمسایہ آپ کو ذلیل کرتا آ کے, تو کیا کرے اس بات کا. اس لیے جلد بازی مت کرے, جھگڑا کرنے میں جلد بازی مت کرے. ایون کہ جھگڑا ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. تو ہمیں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ایسی کوئی سچویشن آ بھی گئی ہے تو جلد بازی مت کریں. ہاللیلویا. اب ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں. امثال اس کا 15 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے, پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری. جو قہر میں دھیما ہے, جو لوگوں کو غصہ بہت کم آتا ہے, جو ہمیشہ پیار سے بولتے ہیں, آپ ان سے مشورہ کریں, ان خادمین سے مشورہ کریں, اپنے ایسے بہن بھائیوں سے مشورہ کریں جو آپ کو اچھی ایڈوائز کرے گا. غضبناک نہ ہو جائے, ایک دم سے غصے میں نہ آ جائیں. اگر کسی نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو آپ ڈسکس کریں اپنے فیملی سے, فرینڈ سے, اس کا حل نکالیں. جو غضبناک آدمی ہے وہ ہمیشہ وہ جھگڑے کو برپا کرتا ہے. لیکن ہمیں غضبناک نہیں ہونا, ہمیں ٹھنڈے رہنا ہے, ہمیں حلیم رہنا ہے, ہمیں فروتن رہنا ہے جس طرح ہمارا خداوند ہے. پریز دی لارڈ. لکھا ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ جھگڑے کو ختم کرتا ہے. تو ہمیں ایک دم سے غضبناک نہیں ہونا, ہمیں دھیمے رہنا ہے, ہر چیز میں بڑے ہی آرام سے ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جھگڑے کو ختم کرتے ہیں, وہ مٹانا چاہتے, کہتے چھوڑو یار ایس گال نو, کوئی گال نہیں, اگر انہیں کہہ بھی دیتا ہے تو اٹس اوکے. اس لیے عزیزو اس بات کو کہیں کہ اٹس اوکے, اگر کسی نے کوئی کہہ دی ہے میرے بارے میں بات تو دیٹس فائن. یہ اس کا اور خدا کا مسئلہ ہے, خدا خود اس سے بات کرے گا. اس بات کو بھول جائیں, بجائے کہ آپ اس بات کا بدلہ لیں, اس بات کو ختم کر دیں. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری ہو, خداوند کی تعریف ہو. ایک اور بات دیکھیں گے, مثال 22 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا. کس چیز کا فساد؟ لڑائی کا, جھگڑے کا. کن لوگوں کو؟ ٹھٹھا کرنے والوں کو. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں, اکثر آپ کی لائف میں بھی, آپ کی فیملی میں, آپ کے فرینڈز میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو بڑا مذاق میں
ऐसी बात कर देते हैं, बाद में कहते हैं ओ मैंने तो मजाक किया था। फैमिलीज में बैठे होते हैं तो या फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हंसी मजाक में बात की कहते हैं ना, तीली ला के ते बादो चले जाना। तो वो हाल होता है लोगों का कि लोग कहते हैं मैंने तो मजाक किया था, मैंने तो मजाक में बात की थी, मुझे क्या पता इस बात से इतना बड़ा फसाद हो जाएगा, मुझे क्या पता था मेरी इस बात से फसाद पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। खुदा के कलाम में लिखा है ठट्ठा करने वाले को निकाल दे। ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर मत करें जो हर चीज को मजाक में ले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हर बात को मजाक में, आप उनसे सीरियस भी होंगे, सीरियस भी बात करेंगे, वो मजाक में ले जाएंगे। तो वो मजाक मजाक में ही घरों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें। बल्कि हम अगर फैमिली में ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें। परहेज करें उन बातों से जिन बातों से वो आपको लगता है कि इसने फसाद डालनी है। तो इसलिए खुदा का कलाम ये बताता है कि ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तो फसाद जाता रहेगा। तो फसाद भी जाता रहेगा, लड़ाई भी जाती रहेगी, झगड़ा भी जाता रहेगा। हाँ, लिखा है आगे, हाँ झगड़ा रगड़ा और रसवाई दूर हो जाएगी। आपको पता है कि मैंने बताया कि ग्रुप्स में ये काम करती है चीजें। जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है तो इसके साथ ही रुसवाई भी आ जाती है। हमारे घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। आपने देखा होगा एकदम से हर कोई अपना अपना फेस बनाकर परेशानी में बैठा होता है, कोई किसी कमरे में, कोई किसी कोने में, कोई किसी जगह पर। क्यों? क्योंकि घर में रुसवाई आ जाती है, मायूसी आ जाती है, घर की खुशी जाती रहती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? झगड़े को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दें, ताकि हमारे घर का जो माहौल है वो बना रहे। हालेलुया। खुदावन खुशी देने वाला खुदा, वो रुसवाई देने वाला खुदा नहीं है। वो चाहता है हम हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। हालेलुया। एक और बात देखेंगे, मिसाल खुदा के कलाम में से मिसाल 21 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, जो कि अक्सर लोग बोलते भी हैं इस आयत को। लिखा है कि घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ेलू बीवी के साथ कुशीदा घर में रहने से बेहतर है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर बीवी का लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि बीवी ही की बात हो रही है। कलाम जो है वो दो धारी तलवार है, इसे समझने की जरूरत है। ऐसा क्योंकि ऐसा लिखा है कि बहुत से ऐसा होता है कि मोस्टली बीवियों से घर का माहौल जो है वो खराब होता है, कि बीवी जो है वो बहुत झगड़ेलू होती है। तो वो ऑल द टाइम वो कोई ना कोई ऐसी बात निकालती रहती है कि किसी ना तरह से तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर इवन के बीवी का ही हम बात नहीं करेंगे, हर वो रिश्ते की बात करेंगे। लिखा है घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ेलू बीवी के साथ कुशीदा घर में रहने से बेहतर है। ये हम घर की बात करें तो इसमें हमारा पूरा जो है खानदान भी आ सकता है, हमारी फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, हमारी कलीसिया भी आ सकती है। घर की बात करें, और घर बीवी की जगह हम और भी बहुत से लोगों को रख सकते हैं, दोस्तों को रख सकते हैं, और बहन भाइयों को रख सकते हैं, रिश्तेदारों को रख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो झगड़ेलू हैं, जो हर वक्त झगड़ते रहते हैं, कोई ना कोई बात निकालते रहते हैं कि कोई बहाना मिले कि झगड़ा पैदा हो, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान जो है वो सेपरेट ही रहे। रहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि इसके पास मैं बैठूंगी
या बैठूंगा तो इसने कोई ऐसी बात करनी है जिससे झगड़ा पैदा हो, तो आप उसके पास बैठे ही ना कि आपको ऐसा लगता है कि इससे झगड़ा पैदा होगा। बेहतर है कि हम इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसे लोगों में अगर रहते हैं हम के जो झगड़ा करते हैं, जो झगड़ेलू हैं, तो उन लोगों के साथ आप बैठे ही ना। सलाम दुआ रखें, खुदा के बारे में बताएं, खुदा की तालीम के बारे में बताएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ऑल द टाइम ऐसी कोई ना कोई बात निकालती है या हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, खुदावंद का शुक्र हो। अब हम आखिरी बात देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि झगड़ा जो है वो क्या हमारी जिंदगी में काम कर सकता है और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की क्या मर्जी है मेरे और आपके लिए है। तो हम देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से खुदावंद हमसे क्या चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि हम इन्हीं कामों में पड़े रहें, इन्हीं मसलों में पड़े रहें, एनू मना लिया, उन्नू मना लिया, इंदे ना लड़ लिया, उनदे ना लड़ लिया? नहीं, खुदावंद की ये मर्जी नहीं है। खुदावंद ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहें। तो हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं रोमियो उसका 12 बाब और उसकी हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से आयत नंबर 18, जिसमें लिखा है, बदी के किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी है उनकी तकदीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदावन चाहता है कि बदी के बदले बदी नहीं हमें करनी। अगर कोई झगड़ रहा है तो उसके बदले हमें झगड़ना नहीं है। अगर कोई गाली दे रहा है उसके बदले हमें गाली नहीं देनी। अगर कोई हसद कर रहा है उसके बदले हसद नहीं करनी। तो बदी के बदले जो भी बदी होती है, जैसा आपके साथ कोई कर रहा है, हमने किसी के साथ वैसा नहीं करना। खुदा का कलाम हमें बता रहा है। ये क्या कि सब बातें जो हमारे नजदीक है वो अच्छी होनी चाहिए और हमारी तरबियत के लिए होनी चाहिए। और खुदा हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ, लिखा है, जहां तक हो सके हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। जिस तरह रूह के फल हमारी जिंदगियों में, उसी तरह हमने एक दूसरे के साथ रहना है, मोहब्बत के साथ, हलीमी के साथ, परहेजगारी के साथ। तो हमें इस तरह रहना है, मेल मिलाप के साथ, एक दूसरे के साथ। खुदावन मुझसे और आपसे ये चाहता है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखते और पाकीज़गी के तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंत को ना देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमने देखा जिस्म के काम जिनकी जिंदगियों से जाहिर हैं और जो करते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, हालेलुया, ताकि हम खुदावंत को देखें। खुदावंत चाहता, हमारे दिलों में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदावंत को देखें। तो उसको काम के वसीला से बयान करने की कोशिश की। मैंने बहुत बरकत पाई जब मैं इस पर स्टडी कर रही थी। मेरा ईमान है जिन्होंने सुना है उन्होंने भी बरकत पाई होगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।